and confirm me in the chat box. All right. All right. So I just want all of you to spare your 5 minutes and let's pray together for you for the result that's coming tomorrow. Dear God Almighty, as we stand one day before the result of CA Inter of our children who have given their exam in May 2024, I request you to shower your blessings upon them. They have put in some really immense efforts. They did not take care of the time, at what point of time they are studying. They were just engrossed in their studies. They had sacrificed so many functions, celebrations, ceremony when others were enjoying and living. They were making sure that they leave no stone unturned to clear this particular exam of CA Inter. They have been working consistently so that they are able to bring smile on face of their parents. They are able to make their entire family proud of their effort, and they are able to reach the destination that they have set for themselves, that is becoming a chartered accountant. Dear God Almighty, please help all these children and also please bless them with the courage, with the energy to face whatever comes in their way. If they get a positive result, help them reach their articleship at proper place so that they are able to learn valuable things which helps them after becoming a chartered accountant. And in case because of your plan and any of their lacking, they are unable to clear, please continue to bless them with energy, with motivation, with spirit, so that they never give up. They improve their efforts and they reach the ultimate goal of theirs, that is becoming a chartered accountant. Be with them at every walk of life. With this, we begin this session. I'm really very happy to have all those who are there right now. Can you all hear me, mere bache? Yes or no? Those who got late, they have actually missed little bit. How are you all feeling? In case you want to turn on your video, I have given you the option, so you may do that. And if you are not comfortable, then you can keep it off your comfort level. How are you all? I know मेरे बच्चे डर तो लग रहा होता है और समझ नहीं आ रहा होता है एग्जैक्टली कि यार क्या होने वाला है एंड हाउ आई एम गोइंग टू मूव अहेड हाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड फर्दर almost gone mixed feelings, yes, but I just wanted to keep this small session with you all to make you realize one thing. And I always keep saying this. जब मैंने पढ़ाई करी तो I always did it in what manner? Keeping everything aside, सब साइड में रख के सिर्फ एक ही चीज पढ़ना पढ़ना पढ़ना. एंड आई एम प्रिटी श्योर कि तुम भी जब पढ़ रहे थे जिस तरीके से आई मतलब हैड ट्रैक ऑफ मेनी ऑफ यू, तो यू वर ऑल्सो डूइंग द सेम. तो जब हम इतना सारा एफर्ट लगा रहे होते हैं और इतना डेडिकेशन से काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार अब जो रिजल्ट आएगा उस पे पास ही लिखा होना चाहिए, क्योंकि जो हमने इतनी मेहनत करी नहीं तो ये किस काम की. तो मेरी एक बात है जो मैं साथ में हमेशा मतलब मानती हूँ कि रख के चलना चाहिए, कि मेहनत करना हमारा काम और जो फल मिले ये ऊपर वाले की हमारे लिए जो भी जो भी चाहा है ये वो है. तो एफर्ट अगर हम नहीं लगाएं तो हम गलत हैं. प्रेपरेशन हमारी नहीं थी सही तो हमारी गलती है. और अगर हमने सब कुछ किया लेकिन 1% कोई भी चीज आगे पीछे हो, तो हमें उसको इसी बात को सोच के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए दैट दिस इज द प्लान ऑफ गॉड फॉर अस. और ये लगता है कि ये अगर मैंने सब किया है तो मेरे लिए ये प्लान क्यों है. क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है दैट वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स. व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ कीपिंग एग्जामिनेशंस असाइड, देयर आर सो मेनी थिंग्स फॉर विच आई पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट. आई मीन मैडली leaving everything aside. I'm just working and working and working and working. And then what do I expect is that, yeah, ये तो होना चाहिए. But when that doesn't happen, it makes us devastated.
We are like, why? And even me, why? But that is the point when God is testing us. And actually, that is the time and the point when God is making us stronger than what we were. This is very, very important for you to understand. So, whenever जो हमें लगता है हमें मिल जाए और अगर वो चीज ना मिले तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू पिंच, इट्स गोइंग टू हर्ट। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि इतने सारे लोग होते हैं हमारे लिए नेगेटिविटी और बढ़ाने के लिए that we don't know where to go. But ये समझना जरूरी है that this life of ours is a gift of God to us and हम अपना एफर्ट लगाते जाएं to make this life beautiful. But ultimately जो हमारे लिए हमारे क्रिएटर ने प्लान किया है उसके पीछे कुछ तो वजह होगी। तो we are not supposed to give up. We are not supposed to give up ये बात को सोच के कि यार अब नहीं हो रहा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, या शायद मेरी लाइफ ही नहीं है, या फैमिली वाले बोल रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा, या फ्रेंड्स बोल रहे हैं तुमसे नहीं होगा। तुमसे हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ कमी रही हो तो हम उसको देखेंगे, हम उसको सुधार करेंगे। बट अगर ये लगे कि नहीं यार चीजें काफी हद तक ठीक थी, तो आप अपनी कॉपी मंगाएं, उस कॉपी को एवेलुएट करें। कॉपी एवेलुएशन के लिए आपको दूसरे से ज्यादा खुद पे डिपेंडेंट होना चाहिए। इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर और कॉपी को बैठ के मैच करे आदमी कि यार कहाँ कमी मेरी रह गई। आपकी प्रैक्टिस में कमी है, स्पीड में कमी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कमी है। और अगर सब कुछ ठीक है तो जो मैंने आपसे कॉपी मैच करने का कहा कि कहाँ इंस्टीट्यूट को मेरी कमी लगी जो मैं खुद नहीं पकड़ पा रहा। हमें क्यों हमारी गलतियों को ढूंढना जरूरी है। रीजन ये है कि जब तक गलतियों पे वर्क नहीं करोगे तो क्लियर नहीं होता, जब तक नहीं करें। और मुझे ऐसा लगता है क्लियर होना भी नहीं चाहिए। बिकॉज अगर आप धुप्पल बोलते हैं उसमें क्लियर हो भी गए तो बात यह है कि सीए बनने के बाद जब आप कहीं पे जाओगे फॉर जॉब तो जनरली सिलेक्शन नहीं हो पाता बिकॉज वी लैक ऑल दो स्किल्स दैट वर रिक्वायर्ड। सिलेक्शन बाय चांस हो भी गया तो जॉब से कुछ समय में निकाल तक दिया जाता है। देयर आर फ्यू केसेस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड विद देम। तो आप जैसे डॉक्टर का सोचते हो कि यार डॉक्टर वही व्यक्ति बने जिसको आता है, पता पड़ा ऐसे ही कोई बन गया और हमारे पे एक्सपेरिमेंट कर दिया, तो वही बात चार्टर्ड अकाउंटेंट का है कि यार कंपनी के करोड़ों मिलियंस एंड बिलियंस पैसे होते हैं एंड इट इज आवर एडवाइस यूजिंग विच दे आर गोइंग टू गो अहेड। और अगर उसमें कुछ कोताही या कमी या गलती हो जाए तो it can have such a repercussion on that company and definitely all those who have invested in that company. So we are very important. Our advice is very important. But in case we are lagging, in case we are missing, we don't have that what is actually needed. तो शायद वही better है हमारे लिए कि we study again, we improvise on it, and we become that perfect person as a chartered accountant is and should be. Are you understanding what I am saying? So I wish all of you should keep your head straight ahead. You are not going to put your head down. You are not going to feel low for anything. You need to understand one thing. You deserve it. You are destined to become a chartered accountant. Come what may, people may support you, people may withdraw their support, people may talk positive about you, people may keep doing backbiting about you, people may pass on negative comments about you, but all these things, I mean, don't take it. Have a shield, a protective layer around you, and somebody says it, think, do not answer back also. They are stupids. They are literally stupid. Speaking of all this rubbish, इतना दम है और इतनी बातें करनी है, गिव योर सेल्फ। एग्जाम दे लो, किसी भी उम्र में फॉर्म भर सकते हैं, फिल द एग्जाम, गिव योर सेल्फ, यू रियलाइज व्हाट इट इज। तो आपको किसी के दूसरे के कहने के हिसाब से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है एंड इंट्रोस्पेक्शन इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। इफ वी आर समबडी हु कीप्स ऑब्जर्विंग आवर ओन थिंग, यार मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था और कैसे करना चाहिए था, एंड इन केस आई हैव नॉट डन दैट, आई एम रॉन्ग एंड आई नीड नॉट speak that before the world that yes I was wrong. We can remain calm, we can remain quiet, and we can work on our flaws and ensure that we are able to overcome those flaws. तो गड़बड़ अगर कहीं है तो हम उसको सुधार करेंगे। तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कहीं कोई ऊंच नीच हो भी गई है तो इट्स ओके। कभी कभी बच्चों को लगने लगता है मैम मेरी एज जाती जा रही है, तो यार सीए जब घुसे थे इसमें तो ये तो पता ही था कि मिनिमम ही लगता है 4.5-5 साल, अपर एंड तो कुछ होता ही नहीं है।
तो अब ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो इसके अंदर गलती तो अपनी होती है मैक्सिमम मेजोरिटी टाइम। कहीं सिली मिस्टेक करी होती है एग्जाम में, या प्रेपरेशन में कमी हुई होती है, या घूमने फिरने चले गए होते हैं, या सेल्फ स्टडी नहीं करी होती, कुछ तो होती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अब ये ऐसा पाप हो चुका है जो इरिवर्सिबल। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। वी आर फॉर्चुनेट, वी आर लकी दैट वी हैव एन अटेम्प्ट विच इज वेरी क्लोज। अगर पहले का पड़ा हुआ है और उसको तुमने डबल एनर्जी के साथ, बिना ये नेगेटिविटी को अपने दिमाग में लाए पढ़ा, तो जहां पे खड़े हो अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो निकाल लोगे अपना एग्जाम, निकल जाएगा अपना एग्जाम। लेकिन अपने को इतना डल नहीं हो जाना है मेरे बच्चे कि अपन बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लें, अपन अपने दिल दिमाग पे ले लें, हम अपने आप को मेंटली ऐसा कर लें कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे किसी बात नहीं करनी, चीट नहीं करनी, बिल्कुल डल हो जाए। ऐसा नहीं करना है। जिंदगी कुछ हद तक हमारे इस रिजल्ट पे डिपेंड करती है, बट तुम्हारी जिंदगी इज far more precious than the result. Your life is far more important than the result. So result may show any score that may give you some happiness or sadness, but ultimately your life is for a purpose and you will reach there. Are you understanding, my dear children? हाँ, मुझे पता है। गिव अप नहीं करना है और घबराना नहीं है। और कोई भी ऐसा शख्स जो हमारी फैमिली में इस बैकग्राउंड का नहीं है, सकता है कोई सपोर्ट करे कोई ना भी करे, तो आपको चिंता नहीं करना है। मैं एक बात कहूँ, मैं कहीं पर भी, मैं कहीं पर भी हूँ, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी एंड डिस्कस विथ मी। मे भी ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट आए और एक साथ सब लोग कॉल करने लगे, तो मैं एकदम सबका कॉल ना उठा पाऊँ। बट डेफिनेटली यू नीड टू कीप लिटिल बिट ऑफ पेशेंस। यार मैम अभी एक से बात कर रही है, तो फिर हमसे बात कर लेंगे, फिर हमसे। यू कैन एटलीस्ट ड्रॉप अ मैसेज कि मैम ऐसी ऐसी बात है, आई विल माई सेल्फ कॉल यू बैक, we will discuss whatever it is. But we have to understand one thing, it is part of life. And these CA exams, this syllabus is just something that makes us very strong in life. We are able to understand कि लाइफ में सब कुछ हमारे मुताबिक नहीं चलता, चीजें ऊपर नीचे हो रही होती हैं, लेकिन ये हमें फेस करना सिखा देता है हमारा कोर्स। तो घबराना नहीं है। मैं तुम्हें एक बहुत प्यारा सा कोट है, वो तुम्हारे लिए सामने मैंने रखा है। आई होप इट ब्रिंग सम इम्पैक्ट ऑन यू, एंड इट इज गॉड डज नॉट बर्डन अ सोल beyond that it can bear. Whenever I read this, it gives me so much of like positivity कि ऐसा लगता है यार ये भी मेरे साथ हो रहा है, ये भी मेरे साथ हो रहा है, ये भी मेरे साथ हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि God does not burden a soul beyond that it can bear. So it means I'm very strong. I have more ability to bear. I can bear more. तो ठीक है शायद। और जहां मेरी बियरिंग एबिलिटी खत्म हो जाएगी तो फिर ठीक है, गॉड विल गिव वॉट एवर इज, तो इट्स टू मेक अस स्ट्रॉन्ग। और दूसरा, ये एक बहुत ही प्यारा कोट मैंने पढ़ा, तो आई वांटेड टू शेयर दिस आल्सो विथ यू। देयर इज अ क्रैक इन एवरीथिंग, दैट्स हाउ द लाइट गेट्स इन। तो आप ये मानिए, किसी बहुत अमीर माँ बाप का अगर कोई बच्चा हो, बेटा या बेटी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दे नो ऑल द हैक्स ऑफ लाइफ, और अगर वो निकल जाए और कोई एग्जाम दे रहे हो तो वो सब निकाल लेंगे? नहीं। नो। क्यों ऐसा? क्योंकि वो जब तक आपके ऊपर पड़ती नहीं है ना, तब तक हम बन नहीं पाते। सच्चाई बता रही हूँ मैं। आई थिंक कि मैसरा wouldn't have been मैसरा if मैसरा wouldn't have faced all that she has faced in her life. मैं नहीं होती वैसी, अगर जो जो कुछ भी लाइफ के अंदर हुआ वो ना हुआ होगा, तो आई वुड हैव बीन एज ऑर्डिनरी एज जनरली पीपल आर। तो जब तक वो हम फेस नहीं करते, तब तक वो दम नहीं आ पाता, और तब तक हम उससे आगे नहीं निकल पाते। तो अपने अंदर आप हिम्मत रखेंगे, आपको कोई का सपोर्ट मिले ना मिले, आपको किसी के सपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने अंदर सक्षम हैं, आप पढ़ेंगे, निकल गया इंटर तो बहुत मुबारक हो। सही जगह आर्टिकलशिप फाइनलाइज करेंगे, आपको लगे मुझसे डिस्कस करना, बिल्कुल करें। गो ऑन विद आर्टिकलशिप, गिव योर सीए फाइनल, बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंजॉय योर लाइफ, ऑल माय ब्लेसिंग्स विद यू। नहीं निकला, हिम्मत करेंगे, फिर खड़े होंगे, आगे बढ़ेंगे, और जो तय किया है वहां तक पहुंच के रहेंगे। बस ये मेरी तुम्हारे लिए विश है। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि तुम में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि डाउन द लाइन, आफ्टर फ्यू इयर्स, 2 3 4 साल बाद में मिलूं, कोई भी बोले मैम मैंने सीए छोड़ दिया था। ऐसा नहीं हुआ है। हर इंसान मुझसे बोलेगा मैम सीए सो एंड सो, एंड आई विल बी लाइक सो हैप्पी एंड ग्लैड टू मीट यू। सो दैट्स कमिंग वेरी सून फॉर यू। यस, yes Daisy, I know you have that potential, my girl, and you will make it.
यस चार्लेट, अलेक्जेंडर भाई, एलाइस, हिल्टन, हिमांशी, संगीता, खुशी, इमाज, बहुत सारी दुआएं सारे बच्चों के लिए। यू विल मेक इट। विलियम, वामिका, थॉमस, स्नेहा। और क्या हमें अपना खाना नहीं खाना है रात में? हमें खाना प्रॉपर खा के सोना है। हमें अपनी प्रॉपर रात में नींद पूरी करनी है। ये नहीं सोचना नींद में क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इतना होता है, इंसान है, 5-10% थोड़ा। लेकिन सुबह उठो, जब तक रिजल्ट नहीं आया, ये नहीं कि नाश्ता ही नहीं किया, नाश्ता करिए आप अपना। यहाँ तक कि चाय वाय बना के मम्मी पापा को भी पिला दीजिए। वो बोले ये क्या हो गया, यार ठीक है, अब रिजल्ट आ रहा है तो बनना पड़ेगा अपना इतना। यस। तो नींद भी खराब नहीं करनी अपनी, खाना पीना प्रॉपर खा के चलना है, रिजल्ट जो भी आए। बाकी को बताओ ना बताओ कि पूरे रिश्तेदारों को बता रहे हो, मेरे को मैसेज जरूर कर देना, बिकॉज चिंता रहती है। और बाकी जो भी होगा अपन देखेंगे, समझेंगे, करेंगे। मैम टाइम का कुछ आइडिया है भाई? कुछ आइडिया नहीं है, कभी भी आ जाता है। जनरली रिजल्ट 12 बजे आता है सुबह, 12 पे भी आ सकता है, और वो कभी कभी शाम भी खिंच जाती है, तो 6-7 बजे भी आ जाता है। क्या बोल रहा है? सुबह उठ के भगवान जी से मिल लेंगे। सुबह उठ के क्या, आप रात भर भी इबादत कर सकते हो। यू कैन प्रे एट नाइट ऑल्सो। प्रेयर के लिए तो कोई उसकी बात नहीं, लेकिन प्रेयर क्या करना, हम पास हो जाए, पहली। लेकिन दूसरी, कि अगर आपका प्लान, मेरा अभी नहीं निकलना, इफ दिस इज योर प्लान गॉड, give me that energy that I'm able to face it. Give me the strength so that I'm able to stand up again. And please be with me for the next journey that I have ahead. आपको ये प्रेयर करना चाहिए। हाँ बेटा, इमाज होता है, आई डू अंडरस्टैंड दैट, होता है। मैंने ये सब फेस किया हुआ है। और हर साल जब 2 बार रिजल्ट इंटर का और 2 बार रिजल्ट फाउंडेशन का आ रहा होता है, सीएस वाले बच्चे उनका, तो बार बार यही फीलिंग अंदर हो रही होती है। ऐसा लगता है जैसे खुद का रिजल्ट आ रहा है। मतलब मैं बोल तो ये सब रही हूँ, लेकिन आई नो कि मैं अंदर से कैसी हो रही होती हूँ। तो एक शिवरिंग वाली सेंसेशन होती रहती है। तो हम लोग पेपर लिख रहे होते हो, और यहाँ हाथ पैर ऐसे हो रहे होते हैं, इनका पेपर पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इनका वो छूट ना जाए, क्वेश्चन ऐसा ऊपर नीचे नहीं आ जाए। मतलब मैं सच बता रही हूँ, बिकॉज एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम, आई एम सो इमोशनल पर्सन एट द अदर साइड। तो आज पूरा दिन हो गया, बस बार बार दिमाग में आना, तो मैंने कहा यार मेरे को इनसे मिलना है, एटलीस्ट मैं थोड़ी बहुत बात तो कर लूं। हाँ मेरा बच्चा, यही बात है। और मेहनत कभी जाया नहीं जाती, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। तो अपने पे गिव अप मत कर, बस ये जिंदगी में समझ के चलो, अपने पे गिव अप नहीं करना। किसी की किस्मत में कुछ 20 साल में लिखा होता है, किसी कोई पैदा ही मुंह में सोने का चमचा लेके होता है, तो मुंह में है गोल्डन स्पून, तो वो भी हो सकता है। और किसी की किस्मत में कोई चीज थोड़ी सी लेट लिखी होती है, लेकिन मेरी किस्मत है, तो उसको तो मुझे करना ही है ना। मेरी जिंदगी है तो उसको तो मुझे ब्यूटीफाई करना ही है ना। अपनी किस्मत है, अगर आप अपने आप पे गिव अप कर दोगे कि यार है ही नहीं, ऐसा नहीं है। करना है, करना है, करना। जब तक करते जाना है, जब तक ऊपर वाले को मना ना ले और किस्मत को पलट ना दे कि यार यस ये तो होना है। तो हमेशा वाली एक कहानी, हमेशा वाली एक कोट, एंड व्हाट इज दैट कोट, तुम सबको याद ही है। मेरे पापा हमेशा कहते थे, और मैं तुम्हारे सामने मल्टीपल टाइम्स कही हुई है ये बात, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इतनी पागलपन और जुनून होना चाहिए काम के अंदर, इतना जज्बा होना चाहिए कि अगर हमारी तकदीर में कुछ और लिखा भी है, तो खुदा भी कहे कि भाई कितनी मेहनत कर रहा है बॉस, कितनी, बदलना ही पड़ेगी तकदीर तेरे लिए। तो उसके हाथ में तो सब कुछ है ही। ठीक है, तो बस मुझे यही तुमसे कहना था। तुम्हें अगर कोई बात कहनी हो तो यू कैन राइट इन द चैट। एंड ऑल माई विशेस एंड ब्लेसिंग्स आर विथ यू, डोंट फॉरगेट शेयरिंग योर रिजल्ट विथ मी। क्या बोल रहे हो? थैंक यू सो मच, आपने क्लास रख ली, हिम्मत हो गई। भाई जो ये लोग लेट हो गए ज्वाइन करने में, आई फील सैड। थोड़ा सा ही टाइम रहा, लेकिन वी हैड सम गुड इंटरेक्शन। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ रिजल्ट यू कांट से, 12 बजे के आसपास भी आ सकता है, कभी कभी सुबह 9 बजे 10 बजे भी आ जाता है। चेक करते रहना, वो तो और क्या। और चेक करने में टेंशन हो तो मुझे अपनी डिटेल शेयर कर दो। मुझे तुम लोग अपना वो भेज दो, क्या रोल नंबर, मैं चेक करके बता दूंगी। मुझे भेज दो, मैं अपना, मैं चेक कर दूंगी और फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। तुम बार बार चेक मत करना, जो होगा कुछ नहीं होता, मैं ही तो देख रही हूँ, कोई और थोड़ी ना देख रहा। क्या बोल रहे हो बेटा? हाउ डू वी डील इफ एनीथिंग नेगेटिव हैपेंस? पहली बात तो आई विल कीप अ सेशन, आई विल मेक श्योर दैट आई कीप अ सेशन so that we are able to discuss. But by chance, if something negative happens, July and August, 2 months in your hand, September you give exam and you will pass. अगर कुछ हो भी जाए, अगर कुछ हो भी जाए,
तो तुमने अभी लेटेस्ट में प्रेपरेशन करी हुई है, एक आधी महीने का गैप है, 2 महीना तुम्हारे हाथ में, 1.5 महीना है। दिन रात एक करके अपन अपनी पढ़ाई कर लेंगे और निकाल लेंगे। अरे इंशाल्लाह ताला वामी, वामिका, इंशाल्लाह मतलब होता है। यस यस। हाँ मेरा बच्चा संगीता, आई नो ऑल दैट, आई नो दैट। मुझे तुम लोग सब लोग डरो नहीं, रे घबराओ नहीं, सब अच्छा होगा मेरे बच्चा, सब अच्छा होगा, जो होगा अपन वील डिस्कस एंड वील प्लान आउट। तुम लोग मुझे सब बच्चे भेज दो अपना रोल नंबर। ऑनेस्टली कह रही हूँ मैं, यू शेयर योर रोल नंबर विथ मी, अपने बीच की बात है, मैं उसको पब्लिक नहीं करने वाली। तो मुझे अपना रोल नंबर शेयर कर दो, मैं रिजल्ट चेक करके तुमको भेज दूंगी। और जो होगा एटलीस्ट मुझे ये पता होगा, अगर अच्छा है तो बोल दूंगी ये रिजल्ट पास हो गया, चलो बात कर लेना जब टाइम मिले। और अगर नहीं निकला तो आई रिमेन इन कॉन्टैक्ट विथ यू। ठीक है। तो डरने का नहीं है। कुछ कुछ लोग तो भाई बहुत ही लेट हो गए आने में, ज्वाइन करने में। शादी का खाना खत्म हो चुका है। शादी का खाना खत्म हो चुका है। टाइम से आते तो आपको गर्मा गर्म खाना मिल जाता है, सर्व किया जा रहा था प्लेट्स के अंदर। ओके, तो पेरेंट्स को भी मेरी तरफ से ये बात जो मैंने कही, अगर तुम्हें लगे तो यू कैन शेयर विद देम। अगर तुम्हें लगे रिजल्ट कुछ ऊपर नीचे हो गया एंड यू वांट के पेरेंट्स से मैं बात कर लूँ, आई कैन डू दैट। क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू पेरेंट्स, खुद को एक बार समझाना फिर भी कई बार आसान होता है। यू वांट, मैं उनसे बात कर लूंगी, जैसा भी होगा अपन मिलके देखेंगे ऐसे क्या करना है। ठीक है। और तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये मेरा मैसेज पास करते हैं। ऑल राइट। चलो आई टेक योर लीव, बहुत टाइम तुम्हारा लेट नहीं रही मैं। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट। मे गॉड गिव यू ब्यूटिफुल लाइफ, लॉट्स ऑफ सक्सेस। एंड इवन इफ जिंदगी में कुछ उतार हो तो तुम उसको हिम्मत से फेस कर सको। बाकी यू आर गोइंग टू हैव अ ब्यूटिफुल एंड अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ अहेड। आई नो दैट यू हैव दिस पोटेंशियल, यू विल मेक इट। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। मुझे बहुत, ऑफ कोर्स मुझे भी मिलके बहुत अच्छा फील हो रहा है, तुम लोग से मिलके तो वैसे ही मेरा दिन बन जाता था, तो अभी मिलके तो। और आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल सो मच, मे गॉड ब्लेस यू abundantly, abundantly। थैंक यू बेटा, बाय बाय।